लाइट ऑन करो। लाइट ऑन करो। Good morning. This is Professor Jaina from Tripura University, Agartala. At the outset, let me express my profound gratitude to the Department of Political Science, Hemavati Nandana Bahuguna University, Srinagar, for inviting me to be a part of this online lecture series. And I express my gratitude to Professor Annapurna Nautiyal, Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Hemavati Nandana Bahuguna University, Professor C.S. Sood, Professor R.N. Goirala, Professor Himanshu Bauri, Professor Rakesh Kala, Professor M.M. Samuel. Friends, today the topic which has been assigned to me to talk about is on globalization, and from my side I have put a caption that is reviewing globalization amidst uncomfortable questions and uncomfortable answers. Friends, you might be thinking that this very business of globalization has already become a quarter century old, almost 25 years. So after a quarter century, why this gentleman is going to review? Is this gentleman going to put old wine in new bottle? पुराना शराब को क्या नए बटल में देने जा रहे हैं? Friends, let me assure you that neither the sharab will be purana nor bottle will be naya. This is only a matter of reflection from different perspectives, from perspectives of different questions, and an attempt to answer those questions. Friends, any branch of knowledge on any theme or any topic, the knowledge never becomes old. Rather, the process of acquiring, grasping the knowledge day by day becomes modern and modern. Same also with globalization. Friends, before I touch upon the core subject, let me narrate a very basic things which will help all of you to have a better understanding, which I am going to share with you. कोई भी नॉलेज को अगर हम लोग मास्टर करना चाहते हैं, हम लोग को 5 साइकिल में जाना पड़ता है, जिसको मेरी तरफ से मैंने नाम दिया हूँ QRRQ, KURRR. K stands for knowledge, U for understanding, R for understanding the reality, second R rationalization, and third R is reflection. कहने के लिए तो ये सिर्फ 5 लेटर है, KURRR, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रियलिटी, रेशनलाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन. ज्ञान, उसको समझना, वास्तवता को परखना, युक्ति संपन्न रूप में इसको उपस्थापन करना और उसको प्रतिफलन करना. कहने के लिए तो 5 सिर्फ लेटर है और 5 शब्द है, लेकिन इसी में 4 तरह का गैप आ जाता है. क्या है वो? नॉलेज जरूर नहीं, जो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, जो हासिल करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसको हम अंडरस्टैंड कर लें. सो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बीच में एक गैप रहता है. गैप नंबर 1, अगर अंडरस्टैंडिंग कर भी लिए, कभी कभी उसका वास्तवता जो रियलिटी जो है, वी रिफ्यूज़ टू अप्रिशिएट. आई डोंट से वी डोंट अंडरस्टैंड,
we rather deliberately, consciously, unconsciously refuse to appreciate the reality. Even if the reality is understood, it is difficult to rationalize it. युक्ति संपन्न तर्कपूर्ण उपस्थापन करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर तर्कपूर्ण उपस्थापन करते भी हैं, लास्ट में गैप आ जाता है. क्या है, उसको रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं, प्रतिफल नहीं करते हैं. मेरा कहने का मतलब है, knowledge should be well understood. What we understood should be that should help us in appreciating the reality. The reality should be rationalized. युक्ति संपन्न रूप में उपस्थापन करना और अंतिम में उसको प्रतिफलन करना. ये जो 5 जो लेटर मैंने बोला, QRRR और QRQ, उसके साथ 4 गैप, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का गैप, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी का गैप, रियलिटी रेशनलाइजेशन का गैप, रेशनलाइजेशन रिफ्लेक्शन का गैप. ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है, टुडेज टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, रिव्यूइंग ग्लोबलाइजेशन एमिडिस्ट अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन एंड आंसर. ये जो बैकग्राउंड मैंने दिया उसी बैकग्राउंड पे आधारित है. पहले हम ग्लोबलाइजेशन को इसी संदर्भ में समझने का कोशिश करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकरण, कभी कभी इसको विश्वायन भी कहते हैं. अभी पहला सवाल आता है, व्हाट इज इट, वो है क्या. हम तो जानते हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सर पूछ रहे हैं ये है क्या. एक्चुअली देखने के लिए तो सिंपल क्वेश्चन व्हाट, सुनने के लिए व्हाट. ये व्हाट का बीच में 3 चीज़ छुपा है. वो क्या है? जो व्हाट का सवाल आता है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ये भूमंडलीकरण क्या है, मन में सवाल आता है, इज इट ए प्रोजेक्ट, ये कोई प्रकल्प है. सेकंड, इज इट ए प्रोसेस, ये कोई प्रक्रिया है. थर्ड, इज इट ए प्रोडक्ट, ये कोई फल और परिणाम है. क्योंकि इसी 3 जो बिंदु मैंने बोला, ग्लोबलाइजेशन एज ए प्रोजेक्ट, ग्लोबलाइजेशन एज ए प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एज ए प्रोडक्ट. भूमंडलीकरण एक प्रकल्प के रूप में देखा जाता है, एक प्रक्रिया रूप में देखा जाता है, और एक फलाफल या परिणाम के रूप में देखा जाता है. जो लेफ्ट थ्योरिटिशियन जो है, उसको कहते हैं इट इज़ ए प्रोजेक्ट. किसका प्रोजेक्ट? डेवलप्ड कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्री, USA एंड अदर कैपिटलिस्ट कंट्री का उनका एक प्रोजेक्ट है. और ये प्रोजेक्ट के तहत हम लोग सब नाच रहे हैं. ये उनका एक तर्क है. इसमें बहुत बड़ा थ्योरी दिया गया है. वो थ्योरी के ऊपर मैंने जाऊंगा नहीं, मैंने बिना थ्योरी का बात करूंगा. तो इज इट ए प्रोजेक्ट, पहला सवाल आता है. सेकंड, इज इट ए प्रोसेस, क्या ये कोई प्रक्रिया है जो कि नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप में आता है. थर्ड, क्या ये सिर्फ एक फलाफल है, परिणाम है. ये 3 क्वेश्चन आता है व्हाट में. और ये 3 क्वेश्चन का आंसर ये है मेरी तरफ से, दैट इट इज़ ए कैलकुलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ 3P. जो 3P मैंने बोला, प्रोजेक्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. द 3P का समन्वय है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज इक्वल टू प्रोजेक्ट प्लस प्रोसेस प्लस प्रोडक्ट, P प्लस P प्लस P. ये 3P को लेके ये ग्लोबलाइजेशन है. उसमें ये नहीं कहूँगा सिर्फ प्रोजेक्ट है, ये नहीं करूँगा सिर्फ प्रोसेस है, ये नहीं कहूँगा सिर्फ ये प्रोडक्ट या परिणाम है. ये तीनों को मिलकर ये ग्लोबलाइजेशन. दूसरा क्वेश्चन जो आता है, व्हाई, क्यों. एक क्यों, जैसे पहला व्हाट को हम समझने के लिए 3P में गए, 3P में गए, प्रोजेक्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. अभी व्हाई क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को 3C समझना पड़ेगा. और 3C क्या है? पहला कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण और एककरण. दूसरा कैलिब्रेशन, इसको थोड़ा एम्पावर करना. और तीसरा C होता है कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस. मतलब क्या इसको बनाया गया जानबूझकर डेवलप्ड कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री अपना इकोनॉमिक को कंसोलिडेट करने के लिए, सारा विश्व का अर्थनीतिक व्यवस्था को एकत्रीकरण करके फ़ायदा लेने के लिए? इज इट एन अटेम्प्ट ऑफ कैलिब्रेशन?
बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ये पहला वाई आता है। सेकेंड वाई आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है? दैट इज इट द अदर डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर सीइंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ग्लोबलाइजेशन, सो दैट दे कैन कैलिब्रेट देयर ओन इकोनॉमी। दैट जो डेवलपिंग कंट्री जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, क्या उसको उसी संदर्भ में सोच रहे हैं जो अपना इकोनॉमी को कैसे कैलिब्रेट किया जाएगा, कैसे एम्पावर किया जाएगा, कैसे एनरिच किया जाएगा और हम फ़ायदा लेंगे ग्लोबलाइजेशन का। ये दूसरा सी में आता है। और तीसरा सी में आता है क्या ये कोऑपरेशन और को एग्जिस्टेंस के लिए, सहयोगिता और सह अवस्थान के लिए, दैट सारे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, रिच, पुअर सबका बीच में एक सीमलेस, फॉल्टलेस समन्वय रखने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए और को एग्जिस्टेंस करने के लिए, क्या ये इसका कारण है? सो वाई जब आलोचना करने हम गए हैं उसको हम लोग को 3 सी को फेस करना पड़ा। पहला सी आता है कंसोलिडेशन, जो कि डेवलप्ड कंट्री का पर्सपेक्टिव में। दूसरा आता है कैलिब्रेशन, जो कि डेवलपिंग पुअर कंट्री का पर्सपेक्टिव में। और तीसरा आता है कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस, ये के होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आता है। सो ये जो वाई का बीच में जो 3 सी आ गया, 3 सी, उसका आंसर क्या है? आंसर उसका वही है, इट इज़ नथिंग बट ए कैलिब्रेटेड हाइब्रिड। ये इसमें कंसोलिडेशन भी है। द यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव ट्राइड थ्रू WTO, थ्रू वर्ल्ड बैंक, थ्रू IMF टू कंसोलिडेट देयर इकोनॉमी थ्रू ग्लोबलाइजेशन। सो कंसोलिडेशन ऑफ पर्सपेक्टिव भी करेक्ट है। इसमें कैलिब्रेशन भी थोड़ा है और कोऑपरेशन में है। एक तरह का त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। और ये त्रिवेणी को लेके ये वाई का आंसर हमको मिलता है। लास्ट में आता व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ, कैसे, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव का पीछे हम लोग को अभी भी 3D आता है। 3D क्या है? 3D। पहला D आता है डिक्टेशन एंड डायरेक्शन। क्या है ये? क्या डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका एंड अदर कैपिटलिस्ट कंट्री का तरफ से एक तरह का डिक्टेशन है, निर्देश है, डायरेक्शन है, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ थ्योरिटिशियन उसको भी ट्रूथ मानते हैं, वो सोचते हैं यही सही है। दिस इज ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ शुगर कोटेड डिक्टेशन, शुगर कोटेड डायरेक्शन। इसमें शक्कर दिया हुआ गोली है, जिसके गोली का अंदर नथिंग, सिर्फ डायरेक्शन है और डिक्टेशन है। और कहाँ से? ना रिच कंट्री से। ये एक तरह का पर्सपेक्टिव है। कुछ थ्योरिटिशियन, कुछ एक्सपर्ट लोग इस संदर्भ में बात करते हैं। ये हो गया पहला D। दूसरा D जो आता है दैट क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये लोग क्या ड्यू डिलीजेंस किए हैं? प्रॉपरली उसको परख कर, उसको एग्जामिन कर कर, प्रॉपर टेस्टिंग करके इसमें ज्वाइन किए हैं? ये भी आता है। ये ड्यू डिलीजेंस का फैक्टर है। दैट मीन्स कुछ लोग कहते हैं द पुअर कंट्रीज ड्यू डिलीजेंस करके ही इसमें ज्वाइन किए हैं, और कुछ कहते हैं बेवकूफ़ जैसा ड्यू डिलीजेंस ना करके, ना परख कर झांसा में आ गए। सो ये आ गया दूसरा D, सेकेंड D। और थर्ड D का जो लास्ट में आता है वो क्या आता है? इज इट डिसेमिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? दैट ग्लोबलाइजेशन का थ्रू में क्या एक तरह का अटेम्प्ट है, प्रचेष्टा है दैट जो डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट खास करके सारा दुनिया में एक जैसा हो, एक जैसा नहीं हो, फिर भी एक तरह का स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट हो। डिसेमिनेशन जो विस्तार, विकास प्रक्रिया को विस्तार करने के लिए किया गया है। सो ये हाउ में आता है। सो हाउ में हम लोग को 3 मिला। क्या मिला है? 3D में डिक्टेशन एंड डायरेक्शन, दूसरा D में आता है ड्यू डिलीजेंस, तीसरा D में आता है डिसेमिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। सो ग्लोबलाइजेशन को मैंने जो पहले बताया था, जो बैकग्राउंड में बताया था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रियलिटी, रेशनलाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन, इसी संदर्भ में मैंने व्हाट में मैंने दिया 3P, वाई में मैंने दिया 3C और हाउ में दिया मैंने 3D। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। इसी क्वेश्चन के जरिए में हम लोग को इसको रिफ्लेक्ट करना है, समझना है। अभी जो आंसर मैंने दिया ये नथिंग बट हाइब्रिड, सब में थोड़ा थोड़ा है। इट इज़ नॉट प्योर, इट इज़ एन अलॉय।
ग्लोबलाइजेशन ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, इट इज़ ये 22 कैरेट गोल्ड नहीं है, ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, प्योर नहीं है, ये 22 कैरेट है, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है क्योंकि इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए। सो ग्लोबलाइजेशन में हम लोग को जो आंसर मैंने दिया, हाइब्रिड, ए काइंड ऑफ जुडिशियस कॉम्बिनेशन और ए काइंड ऑफ एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन, ये है थ्योरेटिकल आंसर। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम डिसेक्ट करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे ये सारे आंसर को, तो हमको क्या मिलेगा, उसमें 3 ई मिलेगा। 3 ई क्या है? एंटाइसिंग मतलब लुभाना, जो तुम लोग आ जाओ, ज्वाइन करो, तुम्हारा इकोनॉमी हमारा जैसा डेवलप करेगा, तुम्हारा हाइट हमारा हाइट जैसा हो जाएगा, मेरा हाइट अगर 6 फीट है तुम्हारा हाइट में 6 फुट हो जाएगा, तुम भी अमिताभ बच्चन बन जाओगे। सो ये झांसा दिया गया है। तो एक तरह का एंटाइसमेंट, एक तरह का एल्योरमेंट, एक काइंड ऑफ सिडक्शन, उसको लोभा कर लिया गया है। ये फर्स्ट 3 ई में पहला ई ये है। दूसरा ये क्या है? दूसरा ये है इलेक्टिव। ये कहना गलत होगा जो ये सब डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज नादान थे, इनोसेंट थे, ये सारे बेवकूफ़ थे, उनको लुभा कर, उनको झांसा में लेकर, उसमें प्रलोभन देकर ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया में बैठा दिया गया, ये गलत होगा। कुछ चीज़ है उसमें इलेक्टिव है, मतलब खुद चयन किए हैं, खुद अपनी तरफ से अपनी स्व इच्छा में चॉइस किए हैं। सो एंटाइसमेंट तो है, इसको नकार नहीं सकते हैं। इलेक्टिव भी है, मतलब खुद स्व इच्छा में हम कुछ ज्वाइन किए हैं। और एक बताइए इक्लेक्टिकल, थर्ड ई जो है इक्लेक्टिकल। इक्लेक्टिकल क्या है? इक्लेक्टिकल में जो सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण करके हम इसको आगे बढ़े हैं, मतलब कुछ तो लालच में पड़े हैं, नंबर 1 ई, नंबर 2 कुछ हम चयन किए हैं इलेक्टिव, नंबर 3 इक्लेक्टिक, मतलब उसमें हम लोग तीनों ई का उसमें कंट्रीब्यूशन लेकर ग्लोबलाइजेशन में हम लोग गए हैं। दिस इज प्रैक्टिकल आंसर। अभी आता है जे क्या है, ये कैसे प्रलोभन दिया गया है, कैसे दिया गया है ग्लोबलाइजेशन में दिया। देखिए हम लोग कहते हैं ना, द डिस्टेंट माउंटेन इज ब्लू, दूर का पर्वत, दूर का पहाड़ हमेशा ब्लू लगता है, देखने में नील लगता है। डिस्टेंस माउंटेन ऑलवेज लुक्स ब्लू। द अदर साइड ऑफ रिवर, नदी का उस पार हमेशा ग्रीन लगता है। द अदर साइड ऑफ रिवर लुक्स ऑलवेज ग्रीन। और ग्लोबल विलेज जो है लगता है फुल ऑफ रेनबोज, मतलब ब्लू माउंटेन्स, ग्रीन साइड ऑफ रिवर और रेनबो, BGR, ब्लू ग्रीन एंड रेनबो। तो ये BGR में हम लोग चक्कर काटने लगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये भूल गए, दुनिया, द वर्ल्ड इज़ नॉट BGR, ब्लू ग्रीन एंड रेनबो, रैदर इट इज़ ग्रे। ये ग्रे है, धूसर है, और उसमें कोई भी कलर डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो ब्लू देख कर गए हैं, ग्रीन देख कर गए हैं और रेनबो उम्मीद करके गए हैं। लेकिन जाने के बाद पता चला हाउ हार्श, हाउ टफ, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इस तरह सिचुएशन में हमको करना क्या है, दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गो फॉर ए एक्शनेबल एक्शन, जो कर सकते हैं। सो नेचुरली उसमें वे आउट क्या है। अभी इस जो बैकग्राउंड मैंने दिया, इस बैकग्राउंड को हम सामने रखेंगे, उसमें यहाँ से आगे रोड मैप क्या है, रास्ता कहाँ है, जाएं तो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएं। उसके लिए मैंने एक टाइटल दिया, जस्ट डायल। एक है ना ऑनलाइन कंपनी, अमिताभ बच्चन जी एडवर्टाइज करते हैं, जस्ट डायल। जस्ट डायल करोगे हर चीज़ मिल जाएगा, वहाँ गाय के गोबर से लेकर और सैटेलाइट तक हर चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ भी मैंने कि जस्ट डायल का प्रबंध किया है। जस्ट डायल में मैंने पहले डायल कर रहा हूँ वर्ल्ड इज सिंगल मार्केट। ये जो वर्ल्ड इज सिंगल मार्केट, ये क्या है? जब ग्लोबलाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हुआ, उसमें सारे देश जो ज्वाइन किए हैं, उसमें सबको ये बोला गया था, भाई देखो तुम्हारा तालाब छोटा है, अब मेरा तालाब बड़ा है, तुम्हारा तालाब में छोटा मछली है, मेरा तालाब में बड़ा मछली है, चलो दोनों का तालाब मिला देते हैं, तुम्हारा मछली मेरे यहाँ आएंगे, मेरा मछली तुम्हारा वहाँ जाएंगे, तुमको भी बड़ा मछली मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन हुआ क्या, एक ग्लोबल मार्केट जो हुआ, ये मार्केट में हर कोई एक्सेस कर पाएगा क्या?
आज देखिए इंडिया जैसा कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री, नेपाल जैसा कंट्री, श्रीलंका जैसा कंट्री, फिलीपाइंस, मालदीव्स, मॉरिशस, इस जैसा कंट्री में जो प्रोडक्ट हम मिल रहा है ये सब वहाँ से आ रहे हैं, बड़ी तालाब से आ रहे हैं प्रोडक्ट ले